بیٹھ سکتا ہے، لہذا خدا کے کلام میں سے میرے ساتھ نکالیے۔ آج جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر ایک سیریل سٹارٹ کی ہوئی ہے جی الوہیت، یعنی خدا کی خدائی کے تعلق سے ہم سیکھ رہے ہیں، اور اس کا جو آج کا سرمن ہے، میسج ہے ٹرو گاڈ، یعنی سچا خدا، برحق خدا۔ تو یہ خدا کی ذات کے تعلق سے ہم سیکھیں گے کہ خدا کی ذات کے اندر ٹرو پن ہے، یعنی سچائی اس کی ذات کے اندر ہے۔ تو میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے حوالہ نکالیے، خداوند کے کلام میں سے، خدا کے کلام میں سے یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب اور اس کی 30 آیت، خدا کے کلام میں سے میرے ساتھ نکالیے۔ خداوند تیرا شکر ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب اور اس کی 30 آیت۔ اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ اور ایک حوالہ میرے ساتھ ریفرنس نکالیے، یرمیہ اس کا 10واں باب اور اس کی 10ویں آیت۔ یرمیہ 10واں باب اور اس کی 10ویں آیت خدا کے کلام میں سے۔ لیکن خداوند سچا خدا ہے، وہ زندہ خدا اور ابدی بادشاہ ہے، اور اس کے قہر سے زمین تھر تھراتی ہے اور قوموں میں اس کے قہر کی تاب نہیں۔ اور ایک اور خداوند کے کلام میں سے نکالی حوالہ استثنا 32 باب اور اس کی 4 آیت۔ استثنا پرانا عہد نامہ 32 باب اور اس کی 4 آیت خداوند کے کلام میں سے۔ خداوند تیرا شکر ہے۔ 32 باب اور اس کی 4 آیت، 4 ورس، 4 آیت، کیونکہ 30 آیت سے ہم پڑھیں گے۔ کیونکہ میں خداوند کے نام کا اشتہار دوں گا، تم ہمارے خدا کی تعظیم کرو، وہ وہی چٹان ہے، اس کی سنت کامل ہے، کیونکہ اس کی سب راہیں انصاف کی ہیں۔ وہ وفادار خدا اور خداوند کے پاکلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ اور اس کے آگے لکھا ہے وہ منصف اور برحق ہے۔ ہاللیلویا، وہ منصف اور برحق ہے۔ شکریہ سب بیٹھ جائیں۔ آئیے بیٹھ کر ہم روح القدس کو، پنیما کو، ہولی اسپرٹ کو زوردار تالیوں کے ساتھ ویلکم کریں گے۔ پریز اور ہاللیلویا، خداوند تیرا شکر۔ تو آج کا جو سرمن میسج ٹرو گاڈ کے تعلق سے، سچا خدا، برحق خدا کے تعلق سے ہم سیکھیں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ الوہیت یعنی خدا کی خدائی، یہ کائنات کا جو وجود ہے یہ خدا نے بنایا ہے، مگر دنیا کے اندر سائنس کہتی ہے کہ ایک دھماکہ ہوا تو کائنات بن گئی، مگر ایسا نہیں ہے۔ تو اگر دھماکہ بھی ہو گیا ہے تو خدا نے کیا ہے اور کائنات کا وجود بنا ہے۔ ہاللیلویا۔ لہذا خدا نے کریٹ کی یہ ساری چیزیں، کیونکہ خدا کریٹر یعنی کائنات کا بنانے والا خدا ہے، اور اس نے جیسے یہ سورج، چاند، ستارے، آسمان، پانی، دریا، سمندر، کائنات کی ہر چیز کو بنایا، تو اگر خدا کی خدائی کو کوئی جاننا چاہتا ہے تو یہ چیزوں سے انسان دیکھ سکتا ہے کہ پیچھے کوئی کام ورک کرنے والا ہے، کوئی ایسا معبود ہے جس نے کائنات کو بنا رکھا ہے، آسمانوں کو کھینچ رکھا ہے کہ وہ اپنی جگہ پر تمبو کی طرح کھڑا ہے، اور زمین پانی کے اوپر کھڑی کی کر رکھی ہے اس نے، اور زمین سے زیادہ پانی ہی پانی ہے، اور اس کے اوپر انڈے کی طرح زمین جو ہے وہ تیر رہی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ پانی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس زمین کو ڈبو سکے، کیونکہ خداوند نے اس کی حدوں کو مقرر کر رکھا ہے، اور وہ خدا کائنات کا بنانے والا خدا، میرا اور آپ کا خدا یہوہ خدا ہے، جس کی الوہیت کے تعلق سے ہم سیکھ رہے ہیں۔ ہاللیلویا۔ لہذا الوہیت اس کے بیٹے کے اندر، یعنی اگر کس نے خدا کو جاننا ہے تو پھر اس کے بیٹے کو جان جائے، اور پھر خدا کی الوہیت، خدا کی قدرت، خدا کی خدائی اس کے بیٹے یسوع کے اندر، اور پھر اب کلیسیا کے اندر خدا کے لوگوں کے ذریعے سے دنیا میں ظاہر ہوتی ہے خدا کی خدائی۔ لہذا ہمیں خدا کی پرستش کرنی ہے۔ لہذا ٹرو گاڈ کے تعلق سے جو تعلیم دینے جا رہا ہوں، سچا خدا، برحق خدا، جس خدا کی میں اور آپ عبادت کرتے ہیں وہ ٹرو گاڈ ہے، وہ حق ہے، سچا خدا ہے۔ دنیا کے معبود محض وہ چھپے معبود ہیں، کیونکہ خدا کے کلام کے اندر لکھا خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو چنا
اور پھر لکھا ہے اسے سچا پروفٹ بنایا, نبی بنایا, اور اس کے ذریعے سے نبوت کروائی. دنیا کے اندر بے شمار نبی دنیا کے اندر آئے, خدا کے خادم, جنہوں نے سچے خدا کی پرستش کی, اور سچے خدا نے جو کلام کی باتیں ان کو دی نبوت کے ذریعے سے, انہوں نے کلیسیا کے اندر چرچز کو گائیڈ کیا, بنی اسرائیل کو گائیڈ کیا موسیٰ نے, کیونکہ سچا خدا جو ہے وہ سچا کلام کرتا نبی سے, اور پھر اسی طرح سچا نبی جو تھا اسی طرح سیم ورڈ وہ کیا کرتا تھا, قوم کو دیتا کہ خدا کی طرف سے یہ میسج ہے. مگر اس دور کے اندر جھوٹے پروفٹ بھی تھے, جھوٹے نبی بھی اٹھ کھڑے ہوئے, جن سے خدا کلام نہیں کرتا تھا, مگر وہ اپنے ہی مائنڈ سے, اپنے ہی ذہن سے, اپنی ہی جھوٹی گھڑی ہوئی کہانیوں سے وہ لوگوں کو ابھارتے, کہتے کہ ہم بھی سچے ہیں مگر وہ جھوٹے. تو پھر خداوند کے کلام میں لکھا ہے خدا جو ہے وہ سچا خدا ہے, اس کا نبی بھی سچا ہے. نبوت کا مقصد دنیا کے اندر ایک ہی تھا, نبوت یعنی کلام کرنے کا مقصد کہ سچا خدا ثابت ہو. جو نبی سچ بولے گا, جو کچھ بولے گا, اگر وہ وقوع کے اندر ہو, اگر اس نے کہا کہ مردہ زندہ ہو جائے تو مردہ زندہ ہو گیا, اس کا مطلب یہ نبی کیا ہے, سچا نبی ہے. اگر اس نے کہا کوڑی شفا پا جائے, نبی نے کہا تو کوڑی کیا ہو گئے, شفا پا گئے. اور اگر کوڑی کو کوئی نبی کہے کہ تو شفا پا جائے اور وہ شفا نہ پائے, اس کا مطلب وہ جھوٹا نبی ہے, وہ خداوند کی طرف سے نہیں ہے. اس لیے خدا سچا خدا, اس کا پروفٹ بھی, نبی بھی, کلام سنانے والا شخص بھی سچا نبی ہے. اس لیے جو خداوند کے کلام کے اندر خدا کا بندہ موسیٰ کیا کہتا ہے کہ کہتا ہے میں خداوند کے نام کا اشتہار دوں گا, اس کی تعظیم کروں گا, کیونکہ وہ برحق خدا ہے. ہاللویا. برحق یعنی سچا خدا ہے. جو نبی نے کہا ہے اگر وہ سچا ہے تو وہ نبی بھی سچا نبی کہلائے گا, ورنہ جھوٹا نبی ہے. لہذا خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے موسیٰ کی جو بہن تھی, بڑی بہن مریم, پھر اس کا بھائی ہارون تھا, لکھا ہے جب خدا اس سے باتیں کرتا تو وہ سچا کلام بیان کرتا, اور جب موسیٰ لکھا ہے قوم کے اندر کوئی ڈسیزن لیتا تو اس کی بڑی بہن نے, کیونکہ اسے بچپن سے پالا تھا, پانی سے پکڑ کر پالا تھا اسے, تو وہ کہتی یہ موسیٰ جو ہے یہ مجھ سے پوچھتا نہیں, اندر ہی اندر وہ جلتی رہتی, جیلس کرتی رہتی کہ میں بڑی ہوں اور مجھ سے یہ پوچھتے نہیں, مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کرتا, یہ ڈسیزن خود سے ہی لے لیتا ہے موسیٰ. لہذا خدا کے خلاف بولی. لکھا مریم جو تھی خدا کے خادم موسیٰ کے خلاف بول اٹھی اور کہنے لگی کیا تو ہی نبی سچا رہ گیا, ہم بھی نبی ہیں. تو لکھا خدا کا غصہ بھڑکا, اور لکھا مریم جو تھی لکھا اس پر اس کو کوڑ ہو گیا, اس کی باڈی کے اندر کوڑ نکل آیا. ایک ہفتے کے اندر, ایک ہفتہ کوڑ رہا اس کی باڈی کے اندر. پھر لکھا ہے موسیٰ نے, ہارون نے خداوند کے سامنے منتیں مانی, دعائیں کی, انٹرسیکشن کی, دعاؤں کے اندر وہ گرے رہے ایک ہفتے کے اندر. تو لکھا خدا نے پھر اسے ہیل کیا, مریم کو معاف کیا, شفا دی. تو خدا نے پھر کلام کیا, اس نے کہا کہ موسیٰ تو میرے گھر کے اندر سب سے سچا نبی ہے, ایماندار نبی ہے میرے سارے گھرانے کے اندر, یعنی ایمانداروں کے اندر, راست بازوں کے اندر. اگر کوئی راست باز یعنی اچھا نبی ہے تو وہ موسیٰ نبی ہے. ہاللویا. تو اس نے دیکھیں موسیٰ جو سچے خدا کی منادی کر رہا ہے نبوت کے ذریعے سے, اور سچا خدا جو ہے وہ اپنے سچے نبی کی تصدیق کر رہا ہے. ہاللویا. آئیے ذرا زور سے تالیاں بجائیں گے. لہذا دنیا کے اندر ایک ہی خدا ہے, وہ یہوہ خدا, جو سچا خدا, اس کے پروفٹ بھی سچے, سچی نبوت کرنے والے. ہاللویا. لہذا خداوند کے کلام کے اندر اس بات کو خدا کا بندہ داؤد نے بے شمار باتوں کے اندر, زبوروں کے اندر گایا. پھر اس نے کہا سچائی, سچائی کے تعلق سے اس نے کہا, بہت سچائی پر موسیٰ داؤد بولا. اور اگر آپ اس کے بیٹے کو دیکھیں تو وہ اس کا بیٹا بھی شاعر انداز کے ذریعے سے, اس نے شاعری کے ذریعے سے, سلیمان نے
सुलेमान बादशाह ने जिसे खुदा से हिकमत मांगी, शायरी अंदाज से कहा, उससे कहा कि सच्चाई को अपने गले का तोक बना ले, यानी नेकलेस बना ले। जैसे गर्दन के अंदर नेकलेस जो है वो भाइयों खूबसूरती की इलामत, ब्यूटी की इलामत, इसी तरह सच्चाई तेरे अंदर नजर आए, हमारी जिंदगियों के अंदर नजर आए, क्योंकि हम सच्चे खुदा की इबादत करते हैं। हालेलुया। सुलेमान ये बात कहता है, वो कहता है सच्चाई को अपने गले का तोक यानी नेकलेस बना ले। जैसे गले के अंदर एक नेकलेस जो होता है, हाथ बड़ा खूबसूरत लगता है, गर्दन के अंदर खूबसूरती की इलामत, इसी तरह सच्चाई तेरे अंदर खूबसूरती की इलामत है। तू सच बोलने वाला हो। आमीन। सच्चाई, क्योंकि तू सच्चे खुदा की इबादत करता है, लिहाजा तेरे अंदर भी क्या हो, सच्चाई हो। लिहाजा खुदा का बंदा दाऊद क्या कहता है, वो कहता है कि शफकत और सच्चाई ने आपस में भूसा लिया है। किस किया है? शफकत और सच्चाई। शफकत कहते ग्रेस को, हालेलुया। फजल को, फजल और सच्चाई, जहां पर सच्चाई और फजल है वहां पर यहोवा खुदा है। आइए खुदावंद के जलाल के लिए हालेलुया। शफकत और सच्चाई ने आपस में भूसा लिया है। शफकत यानी फजल, ग्रेस, खुदा का जलाल, और लिखा है कि सच्चाई जब बाम मिल गए हैं तो लिखा उन्होंने आपस में भूसा लिया। इसका मतलब क्या है कि एक ईमानदार की जिंदगी में सच्चाई खूबसूरती है, ये उभरे, हमारी जिंदगी से सच्चाई नजर आए, क्योंकि ट्रू गॉड की हम प्रोसेस करते हैं, सच्चे खुदा की प्रोसेस करते हैं। और मैं जानता हूं कि 15-20 साल पहले गैर कौमों के अंदर हम जॉब करते हैं, वहां पर अक्सर बात की जाती कि ईमानदार जो है, ये मसीही जो है झूठ नहीं बोलते। किसी ने सुना हो भाइयों में से? हाँ जी। किसी उस दौर के अंदर? हाँ सर। बहनों में से किसी ने? हाँ जी। आपने? आप में से? हाँ जी। तो ये गवाही गैर कौमों के अंदर, क्योंकि ये ट्रू गॉड की, सच्चे खुदा की इबादत करते हैं, लिहाजा ये झूठ नहीं बोलते, सच बोलते हैं। लिहाजा खुदावंद के कलाम में झूठी गवाही भी नहीं देते। ये क्या करते हैं? झूठी गवाही भी नहीं देते। लिहाजा खुदावंद के कलाम के अंदर हम सच्चे खुदा की इबादत करते हैं, तो उसके लोग भी सच्चाई के साथ ही खुदावंद की प्रोसेस करने वाले हैं। सच्चाई नजर आए, जैसे खुदा के अंदर सच्चाई है, उसी तरह उसके बेटे के अंदर सच्चाई हो और सच्चाई के साथ वो नजर आए। इसलिए तो खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि सच्चाई और क्या शफकत आपस में बहम मिल गए हैं और उन्होंने आपस में भरोसा लिया। यानी इसका मतलब है कि जहां पर सच्चाई होगी, जहां पर खुदा का फजल होगा, ग्रेस होगा, वहां पर खुदा यहोवा, सच्चा खुदा, ट्रू गॉड मौजूद होता है। लिहाजा खुदावंद के कलाम के अंदर हम सच्चे खुदा की इबादत करते हैं। हमारा खुदा सच्चा खुदा, जो कायनात के अंदर सच्चाई का खुदा है, दुनिया के अंदर बेशुमार मबूद है, दुनिया के अंदर बेशुमार मबूद, अलूहियत यानी खुदाई लोग मानते हैं, द्योतों की प्रोसेस करते हैं, उनका खौफ मानते, उनके खुदाओं को ऐसा डरावना बना दिया जाता है, लोग उनसे खौफ खाते और कहते यही सच्चे खुदा है। मगर भाइयों वो तो झूठे खुदा है, वो बोल ही नहीं सकते, तो वो झूठे खुदा है। मेरा आपका खुदा बोलता है, कलाम करता, नबियों के जरिए से नबूवत का दुनिया में करने का मकसद ही यही था कि खुदा, सच्चा खुदा जाहिर हो, कि दुनिया के अंदर एक ही सच्चा खुदा है, ट्रू गॉड है, सच्चाई का खुदा है, और वो यहोवा खुदा है। हालेलुया। जैसा हमारी जिंदगी के अंदर सच्चाई उभर कर निकले, जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो सच्चा खुदा, और उसके बाद सुनिए उसका बेटा भी क्या है, वो सच्चा है, ट्रू गॉड है। क्योंकि पौलुस रसूल कहता है अलूहियत की सारी मामूली खुदा की खुदाई किसमें मुजस्सम होकर, यीशु मसीह में मुजस्सम होकर सकूनत करती। जैसे ट्रू गॉड है, आसमानी खुदा, यहोवा खुदा, सच्चा खुदा, इसी तरह उसका बेटा भी सच्चा ही है। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब खिदमत का स्टार्ट किया तो क्या कहा? राह, हक और जिंदगी मैं हूं। हालेलुया। कोई मेरे बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। राह, हक यानी सच्चाई, ट्रू गॉड मैं ही हूं। आइए यीशु के लिए जोर बता लीजिए। लिहाजा खुदा, यहोवा खुदा, सच्चा ट्रू गॉड, और क्राइस्ट खुदा का बेटा दुनिया में जब आया तो वो भी ट्रू था। इसलिए से कहा राह, हक यानी जिंदगी, सच्चा खुदा हूं मैं, सच्चाई का खुदा हूं। लिहाजा लिखा जब यीशु मसीह को रेस्ट किया गया, अदालतों में लेकर गए, तो अदालतों के अंदर एक बादशाह था। पिलातूस के पास जब उसकी
अदालत में यीशु मसीह को लेकर गए तो वहां पर यीशु मसीह ने उससे कहा, एक जुमला कहा, उससे कहा जो हक्कानी है वो मेरी सुनता है। तो पिलातूस वहां पर रुक गया, डर गया। हक्कानी क्या चीज है? हक्कानी का मतलब सच्चा, जो सच्चा वो मेरी सुनेगा, क्योंकि मैं ट्रू गॉड हूं, सच्चा खुदा हूं। तो वो कांपने लगा और वो डर कर लिखा वहां से निकल गया, मूव कर गया। उसकी जरूरत ना हुई कि क्राइस्ट के सामने पिलातूस खड़ा हो सके और जाकर मशवरा करने लगा, लोगों से कहने लगा कि मैं इसके साथ क्या करूं। तो वो कहने लगे कि इसे क्या दी जाए, सलीब दी जाए। वो कहते हैं यार सच्चा खुदा मेरे सामने खड़ा, उसकी जरूरत नहीं है। वो डर गया, खौफ खाने लगा, ट्रू गॉड का डर मानने लगा और लिखा कि उसने कहा कि ये लोग तो झूठ बोल रहे हैं क्राइस्ट के ताल्लुक से, वो तो सच्चा है, वो तो खुदा ट्रू गॉड है, सच्चा खुदा, बरहक खुदा, सच्चाई मेरे सामने खड़ी हो गई है। लिहाजा लिखा है वो खड़ा ना रह सका और लिखा उसने ये दुनिया के लोग तो झूठ बोल रहे हैं। और फौरन उसने क्या किया, अपने हाथों को धोया इस ताकि मुझ पर ये गुनाह ना आए। लिहाजा वो डर गया, खौफ हो गया, खा गया, वो सच्चाई के सामने खड़ा ना रह सका। क्योंकि आज भी खुदावंद के कलाम में लिखा है कि एक शख्स सच्चा हो और एक झूठा शख्स हो, दोनों भाई, सच्चा खड़ा रहेगा, झूठा भाग जाएगा, क्योंकि वो झूठा है। इसलिए कहा पिलातूस जो था वो हक्कानी के सामने, क्राइस्ट के सामने, यीशु मसीह जो हक है, सच्चाई है, ट्रू गॉड है, उसके सामने वो बादशाह खड़ा ना हो सका, कांपता हुआ भाग गया। वो जान गया कि ये तो सच्चा खुदा है, मेरे सामने, मेरा सामना खुदा का हो गया और वो सच्चाई का सामना हो गया। लगा वो क्या हो गया, भाग गया। देखा खुदा का बेटा, खुदा जो है वो सच्चा खुदा, ट्रू गॉड है, इसी तरह उसका बेटा भी सच्चाई का मब्बा खुदा है। यानी मब्बा कहते हैं, पर जैसे मूसा ने कहा खुदा के कलाम में कि वो सच्चाई का मब्दा खुदा। मब्दा का मतलब है जिसके अंदर कोई बुराई नहीं है, गुनाह नहीं है, जरा सा रत्ती भर भी कोई भाई झूठ नहीं है, वो सच्चा खुदा, मुफादा नहीं। इसका मतलब सच्चाई उसके अंदर पाई जाती है, यहोवा खुदा के अंदर सच्चाई, और फिर उसके बेटे की जिंदगी के अंदर सच्चाई, राह हक है, वो सच्चाई की राह है, आसमानों पर जाने की राह एक ही दुनिया के अंदर है, वो यीशु मसीह है। आमीन। इसीलिए दुनिया के मबूद, अब देखिए कायनात के अंदर जितने मबूद कहलाते, कायनात के अंदर जितनी हकीकी कहलाती, खुदा कहलाते, देवता कहलाते, अपने आप को खुदा कहते, दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर अगर कोई सच्चा खुदा है तो वो यहोवा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। कायनात के अंदर अगर कोई सच्चा खुदा है मबूदों में से तो वो यहोवा ही है, वो सच्चा गॉड, सच्चाई का खुदा। इसलिए लिखा है कि सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी अगर सच्चाई को भैया रखोगे दिल में। सच्चाई क्या कर देगी, तुम्हें बंधन तोड़ देगी, जुड़े खुल जाएंगे, सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी। लिहाजा खुदावंद के कलाम में लिखा है सच्चाई पर ईमान रखेंगे, सच्चाई अपनी जिंदगी में होगी तो जुए बंधन टूट जाएंगे, शैतानी कुत्ते भागेंगी। शैतान के बारे में लिखा है, शैतान क्या है बोलिए, झूठा है, बल्कि झूठों का बोलिए बाप है, क्योंकि वो झूठा है। लिखा जब कहता है तो अपनी सी ही कहता है, जब कहता है झूठा तो अपनी ही सी, क्योंकि झूठा है, बल्कि झूठों का भी बोलिए बाप है, क्योंकि शैतान के अंदर जरा सी भी लिखा सच्चाई नहीं है, जब भी बोलेगा झूठ ही बोलेगा। इसी तरह झूठों का बाप का क्या मतलब है, सुनिए गौर से, जुमला सुनिए। झूठों के बाप से मतलब है कि जो झूठ बोलते हैं उनका बाप शैतान है, वो इब्लीस से है, इसका मतलब ये। और जो सच बोलते हैं उसका बाप, उनका बाप बोलिए क्राइस्ट है। आइए क्राइस्ट से भी सोचा करेगा, हालेलुया। इसका मतलब जो झूठा है उनका बाप जो है वो शैतान से है, वो शैतान है, शैतान झूठा है, झूठों का बाप है। लिहाजा एक ईमानदार की जिंदगी में सच्चाई हो, लिहाजा खुदा ट्रू गॉड, सच्चा खुदा, उसका बेटा सच्चा हक है, हकानी, यानी खुदा के अंदर खुदा ट्रू गॉड है, खुदा का बेटा भी ट्रू गॉड, और फिर ईमानदार कलीसिया भी ट्रू गॉड की वर्शिप करने वाली हो, उनके अंदर भी सच्चाई हो, झूठ ना हो, झूठ का
एक ईमानदार दुनिया के अंदर झूठ बोल रहा है तो वो बाज आ जाए, बाज आ जाए। अगर वो दुनिया के अंदर झूठ बोल रहा है चंद सिक्कों की खातर, चंद रुपयों की खातर, वो झूठ का सहारा लेकर भाई पैसा कमा ले लालच के सबब से, या चंद सिक्कों की खातर वो झूठ बोल दे, जिंदा खुदा के खिलाफ चला जाए, तो भाई वो फिर अदालत करेगा खुदा। इसलिए मूसा कहते हैं खुदा जो है वो अदालत करने वाला है, लिहाजा उसकी अदालत से बचिए भाइयों। खुदा सच्चा, उसका बेटा सच्चा, कलीसिया एक ईमानदार बिलीवर भी सच्चाई पर कायम रहे तो सच्चाई हमें आजाद करेगी। तो खुदावंद के कलाम के अंदर आप पूरी बाइबल के अंदर देखिए, सच्चे खुदा के तल्लुक से बेशुमार हवाले में आपको बता सकता हूं। अगर आप बाइबल के अंदर देखें तो लिखा है कि मेहरबान और सच्चाई, फिर लिखा नेक नीति और सदाकत में सच्चाई, रहम और सच्चाई, रासबाजी और सदाकत, सुलह व सलामती, हलीमी और सच्चाई, मोहब्बत और सच्चाई, मोहब्बत और रास्ती, नूर और सच्चाई, नेकी और सच्चाई, सच्चाई और रास्ती, वफादारी और सच्चाई, सदाकत और अदालत, होशियारी और सच्चाई, फजल और सच्चाई, हक और जिंदगी, लिखा रूह और सच्चाई। हालेलुया। ये आप देखिए पूरी बाइबल सच्चाई से भरी पड़ी है। लिहाजा एक ईमानदार की जिंदगी के अंदर भी सच्चाई, और मैं कह रहा हूं अगर एक ईमानदार बिलीवर जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है, कलीसिया के अंदर खुदा की वर्शिप करने वाला है, ट्रू गॉड का मानने वाला है, सच्चे खुदा की इबादत करने वाला है, तो फिर अगर झूठ बोल रहा है तो वो झूठ छोड़ दे, खुदावंद की वर्शिप करे, सच्चाई से खुदावंद की प्रशंसा करे। इसलिए लिखा रूह, खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से खुदावंद की प्रशंसा करे। झूठे प्रशंसा वाले लोगों की झूठी सताइश को खुदा कबूल नहीं करता। जब वर्शिप उठे तो वो क्या कहते सच्चाई के साथ खुदावंद की प्रशंसा करे। इसलिए खुदा का बंदा दाऊद क्या कहता है, खुदावंद तूने तूने मेरी उंगलियों को जंग करना सिखाया है। हालेलुया। यानी जंग करना, इन उंगलियों को, इस हाथ को जंग करना सिखा। हाथ जो होता है, आप देखिए हाथ से काम किया जाता है, मेहनत की जाती है, फिर हाथों से खुदावंद की क्लैपिंग करते हैं, हाथों से साग बनते हैं। लिहाजा दाऊद इस बात को जान गया, उसने कहा मैं सच्चाई को अपनी उंगलियों के पोटों पर लिख लूं। हालेलुया। उंगलियों के पोटों पर सच्चाई को लिख लूं। और लिखा है कि वो सच्चाई को क्यों कहता है उंगलियों के पोटों पर? वो कहता है इस हाथ से, उंगलियों से क्या होगी, खुदा मुझे जंग करना सिखाया। क्योंकि उसने ज्यादा उंगलियां कहां यूज की भाई, वो बरबत बजाता था, हालेलुया, साज बजाता था ज्यादा। फिर हालांकि उसे बाला भी चलाना आता था, और फिर फलाखन भी उसे चलानी आती थी। फलाखन में मास्टर था भाइयों, ऐसे नहीं जाती जिन्हें अपनी खोपड़ी उड़ा दी, ये चीजें भी। और फिर वो कहता उंगलियों को जंग करना सिखा, उंगलियों से वो बरबत बजाता था। और लिखा है सऊल से बदरूहें भाग जाती थी। हालेलुया। आइए खुदावंद के जलाल के नीचे उधर सच्चाई को सामने रखिए, ताकत पर रखिए। आप ट्रू गॉड को मानने वाले हैं, सच्चे खुदा की प्रशंसा करने वाले हैं। खुदा के बेटे की जिंदगी में सच्चाई और एक ईमानदार की जिंदगी में सच्चाई नजर आए। छोटी सी एग्जाम्पल दूंगा, सुबह खत्म दूंगा। सुनिए खुदावंद के कलाम में, ईमान की किताब के अंदर आप अगर आप पढ़ें, लिखा खुदावंद के कलाम में पतरस के सामने लिखा हननिया सफीरा आ गए। ईमानदार बिलीवर थे, मुकद्दस लोग थे, खुदावंद की प्रशंसा करने वाले लोग। मगर क्या हुआ, लिखा हननिया सफीरा ने लिखा खुदा के साथ वादा किया कि अपना हिस्सा जो है, दौलत जो है, वो खुदावंद की हैकल में लाएंगे, पूरा हिस्सा लाएंगे प्रॉपर्टी बेचकर। मगर लिखा है कि उनके जहन में झूठ आ गया, उन्होंने झूठ बोलते हैं, आधी रकम खुदा की घर में पहुंचा देते हैं और आधी रकम उसमें यशी करेंगे, एंजॉय करेंगे, घर के अंदर ही दफन कर देंगे। खुदा ने क्या तन्नी दफन करांगा थी मिट्टी के नीचे। झूठ बोला। लिखे आकर हननिया जो था पतरस से कहने लगा, बड़ी रकम रख दी उसने पांव के नीचे। तो लिखा है क्योंकि खुदा सच्चा है, उसका बेटा सच्चा है, और फिर रूह कुदस, होली स्पिरिट भी सच्चा खुदा। हम खुदा सलूस की इबादत करते हैं, रूह कुदस से कोई झूठ बोले भाइयों को बच सकता है? वो तो दिलों गुर्दों को जानता है, बंद गूंदे गुंदे को चीर कर खुदा का कलाम निकल जाता है। तो पतरस ने कहा बाकी किधर है? उसने इतने की है, बस यही है, झूठ बोला। लेकिन तुमने यार मेरे सामने झूठ बोल दिया, ठीक, लेकिन रूह कुदस के खिलाफ झूठ बोलेगा? तेरी इतनी जुर्रत, तूने यहोवा का कोई डर नहीं माना। यहोवा खुदा की इबादत करता है, क्राइस्ट की वर्शिप करता है, और फिर रूह कुदस के सामने आकर झूठ बोला, तेरी इतनी जुर्रत। लिखा वो फौरन गिरा और वो भी मर गया। उसकी बीवी ने भी आकर झूठ बोला। चलो एक बंदा तो सच बोल दे यार,
और एक तो बच जाए, क्यों एकता की ऐसी? उसकी बीवी ने भी झूठ बोला, और कलीसिया के अंदर अगर कोई झूठ बोलेगा भाई वो बच नहीं सकेगा, नाम के प्रॉब्लम के अंदर, मुसीबतों के अंदर आएगा। लिहाजा लिखा हर शख्स अपने भाई से झूठ बोलना छोड़कर क्या बोले? बोलिए बाइबल का सच्चाई, सच बोले। और भाइयों लिखा हर कोई शख्स अपने पड़ोसी ये नहीं हमसाया जो है उसकी बात नहीं हो रही, कलीसिया के अंदर जो ईमानदार है हर शख्स ईमानदार के साथ तो सच बोले। लिखा हर शख्स झूठ को छोड़कर ईमानदार के साथ अपने पड़ोसी से क्या बोले? सच बोले। तो कलीसिया के अंदर सच्चाई हो, और अगर सच नहीं बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, तो इसका मतलब है फिर भाइयों हननिया सफीरा की तरह मौत आ सकती है, बीमारी आ सकती है, आपकी जजमेंट हो सकती है, अदालत हो सकती है, हलाक हो सकते हैं, बच्चे बीमार हो सकते हैं, खुद बीमार हो सकते हैं, हादसों का शिकार हो सकते हैं, मौत आ सकती है। इसलिए खुदावंद का खौफ माने, जिस खुदा की आप इबादत करते हैं वो भाइयों ओमनी प्रेजेंट गॉड, एक वक्त में हर जगह मौजूद है। वो तो दिलों भेदों को जानता है, गुर्दों को जानता है। आप हल्की आवाज में दिल में सोचते हैं, ख्यालों में कुछ सोच रहे हैं, वो तो जानता है। ऐसे खुदा की इबादत करते हैं। हमारा खुदा भाई ईंट पत्थर का नहीं है, मूर्तियों में हम खुदा नहीं ढूंढते, हमारा खुदा आसमानों पर मौजूद है, और वो ट्रू गॉड, सच्चा खुदा, हर चीज का नॉलेज रखता, इल्म रखता है, हमारे दिलों गुर्दों को जानता, हर चीज हमारी जो जिंदगी के आयाम है, एक एक जो पेज है वो जानता है। हम आने वाले दिनों के अंदर जो करने के वो जानता है, जो गुजर कर चुके हैं वो भी जानता है, रात के पैरों में जो करते हैं। लिहाजा खुदा की नजर से हम बच नहीं सकते, क्योंकि वो कायनात का बनाने वाला क्रिएटर, पोर्टर, अलूहियत की सारी मामूली क्राइस्ट के अंदर मुजस्सम होकर सूरत करके उसके बाद कलीसिया के अंदर है। लिहाजा कलीसिया जो है डरती कांपती हुई खुदावंद की इबादत करे, प्रशिश करे, और खुदावंद के नाम को जला दे। हालेलुया। आइए आप को सुनाएं कि बंद कीजिए कुछ समय के लिए।